Welcome to Philosophical Therapy by Liftosopher. In this series, we will take one of your problems and we will dissect it like a surgeon. We will take ideas from different philosophers and what would they say on this problem. Like अगर तुम फ्रेडरिक नीचा के पास जाते हो and you ask him कि मेरे को डर लगता है तो what he would say. और तुम या फिर ओशो के पास जाते हो और उनको बोलते हो मुझे डर लगता है तो तुम्हें क्या बोलते हैं. तो उन सबको मैं सीरीज़ में 4 फिलोसफर्स लूँगा और आपकी एक प्रॉब्लम उसको उन 4 फिलोसफर्स का टेक्स से हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. उनके डिफरेंट परसेप्शंस एंड देयर पर्सपेक्टिव्स वी विल सी ऑल टुगेदर. At the last, I will give you my philosophical take on that and my way of dealing with those problems. So, this is the episode 1, and in this first episode of this series, we are going to be talking about your fear. And we will go with this in a very deliberate manner. I'll be talking about this in a very philosophical and in a very detailed manner. So, if you're new to this channel, please hit the subscribe button and you can like this out because बहुत सारे एपिसोड्स मैं ऐसे बनाने वाला हूँ जो कि इस फिलोसफिकल सीरीज विच इज़ फिलोसफिकल थेरेपी से रिलेटेड होंगे. एंड उसमें हम आजकल की जो भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी ऑल आर फेसिंग उन सब प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और फिर उसको डायग्नोज करेंगे उसकी मेडिकेशन तैयार करेंगे. सो इट विल वर्थ इट. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, please subscribe to this channel and I would love if you could hit that like button also. And if you love this content, I am here for you. I'm Liftosopher. Let's begin this video out. तो दोस्त, अगर तुम भी खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो बैठ के इंस्टा पे अपने दोस्तों से या फिर उस इन्फ्लुएंसर्स से जिनकी पूरी लाइफ स्पॉन्सर्ड है just because they can capitalize over you and brands capitalize over them, so they give your attention to the brands and they pay them. तो दोस्त, तुम अपनी लाइफ में खुद से दूर जा रहे हो, खुद के पर्पस से दूर जा रहे हो, खुद तुम कुछ कर सकते थे उस चीज़ से दूर जा रहे हो क्योंकि आपका जो मेन सोशल कनेक्टिंग टूल था जिस पे आपको एक वादा करके लाया गया कि आपको आपके दोस्तों से, आपके फैमिली मेम्बर से कनेक्ट रखेंगे उनकी लाइफ से, वो तो आप कनेक्ट हो और चांसेस ये हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से उतना फाइनेंशियल लेवल पे या फिर उतना इन कंपैरिजन बेसिस पे आप उतना कर भी नहीं पाओगे क्योंकि more or less you all guys, if you are friends and family, more or less you are on a same or little 19-20 वाला फर्क है वहाँ पर, ज़्यादा नहीं है. But that was the promise. But now you're comparing yourself to a millionaire also who wants to capitalize on your attention. Now you are comparing yourself to a guy who's a travel influencer who is capitalizing on your attention. And I'm not saying that travel influencer capitalizing on your attention is wrong or a millionaire capitalizing on your attention is wrong. I'm not saying that's wrong. I am saying that if you are watching the content consciously and using that to improve your life, then that's a great idea. But if you're watching the content and going in resentment or jealousy or envy, then it's destroying your own life. Now you know the problem. Now, if Friedrich Nietzsche was to diagnose your problem, what he would say? He would say that comparison is a morality of weak people compare themselves. You know why? Because they don't have their own standards, they don't have their own path, they are dependent on someone else's desires to feel those desires and enjoy life or feel joy. They want to get the idea of power from somewhere else and they want that idea to align with themselves and become powerful. And Nietzsche would say that it's like there are people who create and there are people who consume. So when you just consume and you don't create something, that's where the comparison begins. Because a guy who's a doctor, who knows that he loves medicine, he loves treating human being, will never be jealous of a billionaire also. That's a reality. But a guy who has become doctor by accident, he wanted to become a cricketer, he will always be jealous of a guy who's a millionaire or a billionaire because he's doing something he doesn't want to do. So it is the slave morality that Nietzsche talks about. That is कि तुम्हें अपना रास्ता ही नहीं पता है ना, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या ज़िंदगी से. जब तुम्हें वो चीज़ नहीं पता तो तुम कंपेयर करते हो.
तो फ्रेडरिक नीचा अगर आपको एक थेरेप्यूटिक एडवाइस देते तो वो यही कहते कि खुद के साथ बैठ, अपना कमरा बंद कर और एक सफ़ेद कागज़ ले, एक कलम ले और खुद से भाग मत। खुद के साथ बैठ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या डेफिनेशन है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की। तेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, तेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर क्या है, तेरी डेफिनेशन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप क्या है, तुझे फ्रेंड्स चाहिए या नहीं चाहिए, तुझे तेरी डेफिनेशन ऑफ फन क्या है। तुझे दुनिया बेचेगी ये फन तो क्लब में जाना होता है, क्या पता तुझे घर पे बैठ के किताबें पढ़ना पसंद हो। फिर तो जिस दिन तू खुद से मिल जाएगा, खुद की उस स्टैंडर्ड्स को क्रिएट कर लेगा खुद के लिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेगा जिस दिन तू, उस दिन कंपैरिजन खत्म हो जाएगा तेरा। ये तेरे को फ्रेडरिक नीचा बोलते अगर तू उनसे ये चीज़ पूछता तो। ऑल्दो हिज फिलॉसफी इज अ होल great vast subject, but on comparison he would say don't subscribe to the idea of slave morality, subscribe to the idea of your own creation. So he would say where creation start, comparison stops. अगर तुम ओशो को जाके बताते कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर ह्यूमन बींग्स और अदर द अचीवमेंट्स एंड ऑल, तो ओशो तुमसे क्या कहते? ओशो मुस्कुराते और वो कहते The comparison is the biggest violence you can do to against your own self. You know why? क्योंकि ओशो ने बहुत बड़े बड़े शब्द में ये बात बोली है कि you are the unique pattern in this existence that never existed before, that never will exist after you. Your genetic composition, the geography in which you are born, the family in which you are born, the capabilities you have, the whatever dynamics of a human beings are there, they will never be formed after you and they were never before you. So you are unique. Osho would say कि एक सनफ्लावर तो कभी खुद को उस रोज से कंपेयर करके ये नहीं कहेगा ना कि मेरे अंदर वो कांटे क्यों नहीं है जो मेरे को प्रेडेटर्स से बचा सकते हैं। एक लोटस कभी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर सनफ्लावर जैसी स्मेल क्यों नहीं है, या फिर एक रोज़ कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा कलर येलो क्यों नहीं है। It's just human beings who don't think this, because अगर तू एक चीज़ को समझेगा, ओशो वुड से कि यूनिवर्स वर्क्स विद ऑल द थिंग्स। अगर हर जगह सिर्फ गुलाब गुलाब होंगे तो एवरीथिंग, देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडिया ऑफ ब्यूटी विल कोलैप्स एंड इट विल डिसअपियर। So ओशो वुड से कि यू आर यूनिक एंड योर यूनिकनेस शुड मैटर, because if you subscribe to a standard that is given to you by these popular Bollywood idols or someone else, it's an idiotic idea. No one can be that perfect. And what do you mean by perfect even? There's nothing as perfection existing, because आप इन लोगों की खुद देख लोगे, आप 50-50 सर्जरी वो रखी होती है इन लोगों की, और ये तुम्हें बेच रहे हैं आइडिया ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सब ने अपने सब करा रखी होती हैं चीज़ें, तुम्हें कोई नहीं बताता ये बात आके। एंड करा रखी है वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका काम है वो चीज़। बट ओशो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे वही बात बोलते कि यू आर यूनिक इन दिस एग्जिस्टेंस। अपनी यूनिकनेस को पहचान भाई, और उस यूनिकनेस को पहचान के उसके थ्रू तू क्रिएट कर कुछ चीज़। ठीक है, अगर तुझे मेडिसिन से प्यार है तो डॉक्टर बन। तुझे पोइट्री लिखनी पसंद है, पोइट बन। तुझे लोगों का दर्द फील होता है, तू बहुत एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग है, वन पोइट, लिख लोगों का दर्द बैठ के, समझ ह्यूमन इमोशंस को। ओशो वहाँ पे इस चीज़ को लाते। तुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ की कंपोजिशन को समझना है, हर किसी नई चीज़ को डिस्कवर करना है ऑन दैट लेवल, साइंटिस्ट बन। लेकिन फिर खुद को कंपेयर तो मत कर किसी से, लेकिन खुद को जान, और जो तू जान लेगा अपने आप को, फिर उस वे में चल, क्योंकि यू आर ए यूनिक पैटर्न इन दिस एग्जिस्टेंस दैट नेवर एग्जिस्टेड before you and that will never exist after you. Okay, now if we take another philosopher who is Schopenhauer, and what Schopenhauer would say on this comparison idea, when you go to Schopenhauer and tell him that I compare myself to other human beings and all, he would say simply one thing: if you want to compare yourself, compare to the both sides. The problem is you compare yourself to just the positive side of something. You see a person with a good relationship on Instagram, you think that's the reality, and you are comparing your real truth
that is you to the manufactured truth of Instagram to your real truth. ये कैसी जस्टिस है? ये तो तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें खुद पता है, तुम जब कोई फोटो अपना क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, तुम 50 पोजेस में करते हो, 50 वे में उसको जब अच्छा आता है फिर करते हो, उस पर 15 मिनट बैठ के तुम एक सॉन्ग सेलेक्ट करते हो, वो लगाते हो। तुम्हें खुद ये बात पता है कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है जो इंस्टाग्राम है, तुम अपनी रॉ रियलिटी से उसको कंपेयर करते हो, तो ये तो तुम अपने अगेंस्ट ही हो ना, किसी और के अगेंस्ट थोड़ी हो। तो शॉपिन आर्ट ने वही बात बोली कि हम सिर्फ एक साइड को देख रहे होते हैं। जब हम किसी इंटेलेक्चुअल आदमी को देखते हैं, हम कहते हैं कितना इंटेलिजेंट आदमी है, इसको तो कोई सफरिंग नहीं होगी। लेकिन वहीं आप जब देखते हो तो शॉपिनार खुद कहते हैं कि टू बी अलोन इज द फेथ ऑफ ऑल ग्रेट माइंड्स, एंड देर आर, तो वो चीज़ है। तो जो जब एक इंसान एक इंटेलेक्चुअल आदमी को देख के उससे ये एनवी करता है कि ये तो बहुत समझदार है, तो उसको कभी ये नहीं पता होता कि वो कितना जोन आउट फील करता है, कितना वो लोनली फील करता है इन दिस होल ह्यूमैनिटेरियन थीम, and how much he has that rebellion, and but due to some causes he can't express that, and वो किसी को नहीं दिखता। वहीं जब आप किसी भी खूबसूरत आदमी को देखते हैं, तो आप खूबसूरत आदमी औरत को देखते हैं आप, तब आप ये कहते हैं कि अरे वाह भाई वाह, तो आपको नहीं पता वो इंसान, उसकी पूरी आइडिया उसकी ब्यूटी के अराउंड क्रिएट कर दिया गया। अब वो इतना सा भी उसको दिक्कत आती है तो उसकी ब्यूटी में वो पूरा इनसिक्योर होकर, परेशान होकर, डिप्रेस हो जाता है। ये आइडिया हमें दिखता ही नहीं है। जब आप एक उस लड़के को देखते हो जिम में जिसकी बहुत मसल्स हैं, एंड यू नेवर नो दैट वो बंदा बॉडी डिस्मॉर्फिया से डील कर रहा है। जिस दिन वो जिम नहीं जाता, उसकी मसल्स श्रिंक हो जाती हैं, थोड़ी सी पम्प्ड नहीं होती, तो उसको डिप्रेस फील होता है। ये आइडिया तो आप कभी आता ही नहीं आपके मन में। क्यों आएगा? क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चर रियलिटी से खुद की रियल रॉ रियलिटी को कंपेयर कर रहे हो। तो शॉपिनहायर का आइडिया बहुत बेस्ट है। व्हेन यू रियलाइज दैट कंपेयरिंग योर रॉ रियलिटी विद समवन्स मैन्युफैक्चर रियलिटी इज अ इडियोटिक आइडिया, and also even if you're not comparing on Instagram, if you're comparing in real life, तो आप सिर्फ उसकी अपसाइड देख रहे हो, डाउन साइड देख ही नहीं रहे। आप उस जिम वाले बंदे की बॉडी तो देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि उस इंसान को जब डिस्मॉर्फिया फील होता है, वो उसको डेली सिर्फ वो हेल्दी खाता है, जिस दिन उसका मन नहीं होता उस दिन भी जिम जाता है। हम उस आइडिया को नहीं देख पाते। एंड हो सकता है फिर वही बात कि फ्रेडी नीचे वुड से कि हो सकता है वो उसका मीनिंग हो, आपका मीनिंग नहीं है। आपका मीनिंग है कुछ क्रिएट करना सोसाइटी के लिए, तो आप वो क्रिएट करो। आपको उससे कंपैरिजन करने की इतनी कोई नीड की वो नहीं है। अब अगर तू मेरे से पूछता कि आई कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट, तो मैं तुझे क्या एडवाइस देता भाई? मैं तुझे एक चीज़ बताता सबसे पहले कि तू जहाँ पैदा हुआ वो ज्योग्राफी अलग है, तेरे जेनेटिक्स अलग है, जिसकी वजह से तेरे डिज़ायर्स अलग हैं, तेरे स्किल्स अलग हैं, तेरी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, तेरी वीकनेसेस अलग हैं। ऑल्दो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तू एक लेवल तक उन पे काम कर सकता है, बट मोटा मोटा अलग है, बिकॉज योर जेनेटिक्स आर डिफरेंट। तेरे को तेरे पेरेंट्स से कितना प्यार मिला है, उनका कितना सपोर्ट है तेरे साथ, दैट्स अ डिफरेंट इन एवरी केस। तू कितने रिसोर्सेज के साथ पैदा हुआ, तेरे पास कितनी जनरेशनल वेल्थ है, तेरे बाप दादा ने कितना पैसा कमाया था जो कि तुझे मिला, वो डिफरेंट है हर इंसान के केस में। तेरी एजुकेशन डिफरेंट है। जब और भी बहुत सारी चीज़ें, जब इतनी सारी चीज़ें तेरी डिफरेंट हैं किसी इंसान के साथ जिससे तू खुद को कंपेयर कर रहा है, एंड उस इंसान की भी डिफरेंट है। हो सकता है एक चीज़ में वो तुझसे ज़्यादा सुपीरियर हो और एक चीज़ में तू उससे ज़्यादा सुपीरियर हो। आप दोनों डिप्रेस हो लो कि वो तो मुझसे अच्छी बाइक चलाता है, उसकी मुझसे अच्छी बॉडी है, मुझसे ज़्यादा वेट उठाता है वो, दोनों डिप्रेस हो लिए। लेकिन किसी ने ये रियलाइज़ नहीं करा कि मेरी स्ट्रेंथ्स अलग है, मेरी वीकनेसेस अलग है, उसकी वीकनेसेस अलग है। एंड जब तुम्हें ये इतना बड़ा सच दिखता है कि तुम यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी, दैट ओशो सेड दैट यू आर अ यूनिक पैटर्न ऑफ बायोलॉजी, यू आर अ यूनिक पैटर्न एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू इन कॉन्शियसनेस। जब तुम इतने डिफरेंट हो, जो कि तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, और हर इंसान तुमसे डिफरेंट है। अगर तुम खुद को सुपीरियर भी फील कर रहे हो क्योंकि तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छे जनरेशनल वेल्थ वाली फैमिली में पैदा हुए, और तुम किसी गरीब इंसान को देख के बोलते हो तो साले वो है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि तुम भी कभी कभी सुपीरियर खुद को फील कर रहे हो,
तभी तुम्हें इन्फीरियर फील हो रहा है किसी और इंसान को देख के, क्योंकि अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई फिर तो तुम ना ही सुपीरियर फील करोगे ना ही इन्फीरियर फील करोगे। अब दूसरा आइडिया मेरा ये है कि हर इंसान तुम्हारा जो माय सेकंड आइडिया इज कि तुम्हारा आइडिया ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर इतना फ्रेजाइल है, उसको क्या बोलूं मैं। तुम्हें लगता है एक चीज सुपीरियर होती है एक इन्फीरियर होती है, अच्छा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अगर हमें इस इतने बड़ी दुनिया को चलाना है तो हमें हर तरीके का इंसान चाहिए। वी नीड अ गाय हु इज इंटरेस्टेड सिटिंग इन अ रूम studying, analyzing, doing experiments, research, a guy who's called boring by the society. We need that guy also to increase the depth of our society, to increase the intellectual research we have, to increase the information we have. आज तुम जो दवाइयाँ खा रहे हो या फिर जो भी हमारे पास जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, सब उन्हीं लोगों की वजह से, जिनको हम बोरिंग बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अरे ये तो नर्ड्स हैं, आज सब उन्हीं की वजह से है ना। उन लोगों ने तो अपने आप को लॉक करा था अपनी लैब्स में, उन्होंने तो रिसर्च करी थी, उन्होंने तो बिना वैलिडेशन की ज़िंदगी जी थी, तभी तो आज हमारे पास वो सब कुछ है जिसको हम तो बोरिंग बोल रहे हैं ना, लेकिन उन लोगों ने उसको पकड़ा और उसको समझा। इसी वे में वी नीड द पीपल हु आर एथलेटिक, जो हमारे लिए हमारी आर्मी में खड़े हो सके। वी नीड अ पीपल जो हमारी स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट कर सके। वी नीड पीपल जो मैकेनिकल वर्क्स कर सकें। अब इसमें सुपीरियर इन्फीरियर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास काम 10 तरीके के और उसमें 10 तरीके की स्ट्रेंथ चाहिए हमें। अगर हमें एक हॉस्पिटल को चलाना तो हमें वो डॉक्टर्स, वो इंसान चाहिए जो मेंटली खुद को किताबों में डाल सकते हैं और उस लेवल के उनका आईक्यू भी है। एंड इन द सेम वे हमें अगर वो लोग चाहिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर सकते, तो हमें वो लोग चाहिए जिनके अंदर स्ट्रेंथ हो कि 2-2 दिन उस ट्रक को ड्राइव करने की, हाईवेज पे ड्राइव करने की, खाना अलग अलग जगह खाने की, अपने घर से दूर रहने की, अपने लव्ड वन से दूर रहने की। तो देयर इज नो वन सुपीरियर। अ डॉक्टर इज नॉट सो सुपीरियर टू सम फार्मर और सम ट्रक ड्राइवर, जो कि एक सोसाइटी में कंसेप्शन है। नहीं, अगर सारे डॉक्टर बन जाओगे फिर भी कुछ नहीं चलेगा। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स के लॉज भी नेचर के साथ अलाइन होते हैं मेरे भाई। अ प्रॉब्लम इज देयर एंड देयर आर पीपल हु सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर। एक फार्मर आपसे सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता सर, या एक डॉक्टर आपसे सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। इट जस्ट आपने एक आइडिया को पकड़ लिया है और आप उस आइडिया को पकड़ के चल रहे हो, बस दिक्कत वहाँ है। आप उस आइडिया को छोड़ो ना, आप वो करो जो आपके अंदर से फील आती है करने की। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें अपनी इकोनॉमिक्स भूल जाओ या फिर अपनी फाइनेंसेस भूल जाओ। ट्राई टू मैनेज दैट आउट, बट ऐसा ना हो कि आप फाइनेंसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस आप उस पाथ वे में चले जाओ जो आपको कभी करना ही नहीं था। फिर आप कंपेयर ही करोगे खुद को, क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे ना जो आपके कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं सर। अगर एक डॉक्टर, उसको पसंद है मेडिसिन, तो क्यों कंपेयर करेगा खुद को किसी और से? उसको सुकून मिल रहा है अपने काम में, वो तो 12-14 घंटे अपने हॉस्पिटल में आराम से इंजॉय कर रहा है, क्योंकि दैट नवाल सेड ना कि दैट व्हाट फील्स वर्क टू अदर शुड फील प्ले टू यू and they will never beat you in that. That's the idea. So you need to understand that this was my philosophical take. So this is the video I have created for you all, and this is the series we will continue. You can comment down your problems on which you want me to create a video or something, whatever you want. I can put that this is my problem. What would your idea you would say on this, and what other major classical philosophers would say on this, and we'll create something for you on that idea also. And with this is me, Liftosopher, signing off.